चैप्टर यहाँ ओवर हो जाता है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो इसके लिए मैं आपके यहाँ से अब दोबारा से इनवाइट करूंगी। कोई नया स्टूडेंट तो नहीं आया है जिसने ना पढ़ा हो? आप में से है कोई जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो कल और आज में? नहीं है तो फिर आई वुड लाइक टू आस्क गुंजन। गुंजन इज देयर? गुंजन हैज लेफ्ट द Yes, क्लास? ma'am. No, गुंजन ma'am. इज देयर? गुड गुड गुड। ठीक है गुंजन, आप पढ़िए Okay. कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। Proper distinction between transactions of capital and revenue nature is one of the fundamental requirements of accounting. It is very significant as without this being done properly, the very objective of accounting gets affected. The application of accounting concepts of periodicity, accrual, and matching leads to the identification of a transaction as either capital nature transaction or revenue nature transaction. When transactions get properly classified between capital and revenue nature, it achieves the following purposes. First, ensures proper accounting of transactions by identifying them either as income or as a liability and expense or asset. Determination of true operating result by correct identification of incomes and expenses. Proper disclosure of financial position in the balance sheet of the entity by correct disclosure of its assets and liabilities. पढ़िए, आगे पढ़िए बच्चे। हाँ जी, capital and revenue expenditures. After the incurrence of an expenditure by an entity, that expenditure has to be recognized as either a capital expenditure or a revenue expenditure before being recorded in the books of accounts. Capital expenditure refers to that expenditure benefit from which can be enjoyed by an entity over a number of accounting periods. This type of expenditure happens to be a non-recurring in nature. A capital expenditure takes place when an asset or service is acquired or improvement of a fixed asset is affected. These assets resulting from such expenditure are not intended for resale in the ordinary course of business. Example: purchase of machinery, construction of building, development of website, heavy repairs of a non-current asset, etc. Accounting treatment. An expenditure of capital nature is not written off completely, that is charged against income in the accounting period in which it is acquired. Rather, it is capitalized, that is recorded as an asset and gets reflected in the balance sheet. However, over time, the amount of capital expenditure sliced for being recognized as a revenue expenditure, that is, it gets gradually charged against the profit. For example, the acquisition of a machinery is a capital expenditure, but charging regular depreciation on this machinery is a revenue expenditure. Revenue expenditure refers to that expenditure benefit from which can be enjoyed by an entity in the current accounting period. This type of expenditure happens to be recurring in nature. Revenue expenditures are incurred to carry on the regular course of operations by an organization. Example: purchase of goods for sale, payment of recurring expenses like salaries, wages, rent, depreciation, conveyance charges, monthly internet charges, etc. Repairs and maintenance of non-current assets, etc. Accounting treatment. An expenditure of revenue nature charged as an expense against profit of the accounting period in which it is incurred or recognized. यस, पहले हम यहीं तक करेंगे। Okay. वो कह रहे हैं प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, कोई खर्चा होता है आपका, कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई इनकम होती है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज विदाउट दिस बीइंग डन प्रॉपरली, अगर आप इसके बिना नहीं करोगे तो आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा,
आप ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखा पाओगे। द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, जो अभी हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें पीरियोडिक कंसेप्ट पढ़ा हमने, एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा हमने, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा हमने, वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे through the identification of transactions as either capital nature or revenue nature. When transactions get properly classified between capital nature and revenue nature, it achieves the following purpose. क्या पर्पस पूरा होता है? क्यों हम ये कैपिटल और रेवेन्यू को देख रहे हैं? क्या जरूरत है ऐसा देखने की? खर्चा तो खर्चा ही है। नो, जरूरत है। आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बाय आइडेंटिफाइंग देम ईदर एज इनकम और एज लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और एसेट। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। आपने एक कार खरीदी, ठीक है, और एक आपने अपने शोरूम का रेंट दिया, तो जो कार खरीदी उसको आप इनकम एक्सपेंसेस मानोगे या एसेट मानोगे? हाँ जी गुंजन जी, आपने कार खरीदी, उसको एसेट मानोगे या खर्चा मानोगे? मैं एसेट मैम मानूंगी। एसेट। हाँ, और अगर किराया दिया शोरूम का उसको? एक्सपेंस। यस, दिस इज द डिफरेंस। तो आप सबको पता है ये चीज, हम जब छोटे मोटे खर्चे करते हैं जो मंथली हमारी डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं वो हमारी एसेट होती है। इसी तरह आपने सेल करी एक तरफ और दूसरी तरफ बैंक से लोन लिया, तो सेल को क्या मानोगे, इनकम या लाइबिलिटी? मैम इनकम। और बैंक लोन को? लायबिलिटी। मैम लायबिलिटी। हाँ, क्योंकि उसको रीपे करना है। तो रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क करने का ये मतलब है। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सही रिजल्ट बताए। कहीं हमने कार को खर्चा मान लिया और बैंक लोन पर इनकम मान लिया, तो हमारा तो पहले साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। उधर से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इधर से हम कार को खर्चा मान रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे और सारी अकाउंटिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम में हमें फर्क पता होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इससे एक ये फायदा होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट को ठीक से दिखा पाते हैं और इनकम ठीक से निकाल पाते हैं। अब वो कहता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आपने खर्चा किया कोई, तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि मेरा कैपिटल का खर्चा है या रेवेन्यू का खर्चा है, और उसको मैं अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूं। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, लंबे पीरियड तक होता है, 8 साल, 10 साल, 5 साल। अब आप कार खरीद रहे हो तो 1 साल में तो नहीं उसको बेचोगे ना, 5-10 साल उसको चलाओगे। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपन टू नॉन रेकरिंग इन नेचर। और दूसरा है कि वो नॉन रेकरिंग होते हैं। एक क्या है कि हमें ओवर द पीरियड उसका बेनिफिट होता है, दूसरा है कि वो नॉन रेकरिंग होते हैं कि हम रोज तो कार नहीं खरीदते, पर किराया तो हर महीने देना होता है ना, कि नहीं? यस मैम। और कार तो हम Yes, कभी कभी ma'am. खरीदते हैं। तो दूसरा है कि वो नॉन रेकरिंग होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, चाहे हम उससे एसेट ले रहे हैं चाहे सर्विस ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम एसेट ही लें। आपने कार की सर्विस कराई या उसमें एक कैमरा लगवा लिया, या कार के अंदर वो जो लगा होता है ना एक डेक टाइप कुछ ऐसा लगा लिया, तो वो आप उसको इम्प्रूव कर पा रहे हो, या नए टायर डलवा लिए, वो सर्विस लिया आपने मतलब कुछ ऐसी, तो वो भी उसकी फिक्स्ड एसेट्स, आप उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ले सकते हो। दीज एसेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर आर नॉट इंटेंडेड टू रीसेल। तीसरी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली करेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसका बेनिफिट उठाएंगे, दूसरा ये था कि नॉन रेकरिंग है, तीसरा ये है कि उसको हम रीसेल के लिए नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने स्टॉक खरीदा, अगर आपका कार का ही शोरूम है और वो कार आप रीसेल के लिए ले रहे हो, तो फिर वो आपका स्टॉक बनेगी, वो आपकी एसेट नहीं बनेगी। अगर अपने लिए ले रहे हो तो एसेट बनेगी, बिजनेस के लिए मतलब। तो वो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये 3 करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब एग्जांपल है, हम मशीन खरीदें, हम बिल्डिंग बनवाएं, हम अपनी वेबसाइट डेवलप करवाएं, या हैवी रिपेयर करवाएं हम अपनी नॉन करंट एसेट्स को, क्योंकि वो पुरानी हो गई है, अब उसको नया बनाना है।
तो ये सब खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि जब हमने कैपिटल नेचर का कोई खर्चा कर दिया तो उसको पहले साल में हम सारा खर्चे में नहीं दिखाते, राइट ऑफ नहीं करते, सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते हैं। अगेंस्ट द इनकम इज द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज एक्वायर्ड, रेदर इट इज कैपिटलाइज्ड। तो हम उसको राइट ऑफ ना करके क्या करते हैं, देखो आपने अगर किराया दिया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में टू रेंट करके सारा खत्म कर देते हो पहले साल में ही। जबकि कार खरीदते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं उसको। हम कैपिटलाइज का मतलब होता है उसको एसेट बना देना, ठीक है, उसको हम एसेट बनाते हैं, कैपिटलाइज्ड एज एन एसेट देखो लिखा भी हुआ है, और उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हाउएवर ओवर द टाइम हम उस एक्सपेंडिचर को धीरे 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 खर्चा समझ के खत्म करते हैं, उसकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं, ईएमआई बनाते हैं जिसको आप ये कह सकते हो। जैसे मैंने 1 लाख की कोई मशीन खरीदी और मुझे पता है 10 साल तक इसने चलना है, तो मेरा हर साल का खर्चा 10,000 है, तो मैं हर साल डेप्रिसिएशन के नाम पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी? हाँ जी, दिखाएंगे। वो मेरे मैचिंग कंसेप्ट को करेगा, क्योंकि इस साल मैंने उससे कमाया भी है तो उसका 10,000 खर्चा उसमें से मैं निकाल लूंगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसमें से चार्ज कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उसका जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गया ये सब? यस। 3 रियो की 4 और मिनट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर बेनिफिट, ठीक है, टमाटर हरी मिर्च, ठीक। Revenue expenditure refers to that expenditure benefit from which can be enjoyed by entity in the current period. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं बेटा जिससे हम सिर्फ करंट पीरियड में बेनिफिट उठाते हैं, और ये रेकरिंग होते हैं। वही ऊपर वाली डेफिनेशन देखो, वो ओवर द टाइम था, ये करंट पीरियड है, वो नॉन रेकरिंग था, ये रेकरिंग है, ठीक है, और ये हमारा रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में चलता ही रहता है, जबकि वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था। एग्जाम्पल, आपने गुड्स खरीदी रीसेल करने के लिए, या फिर सैलरी दी, वेजेस दी, रेंट दी, डेप्रिसिएशन, कन्वेंस चार्जेस, मंथली इंटरनेट चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, इन सब खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट के अगेंस्ट डेबिट करके खत्म कर देते हैं पहले ही साल में, इसको हम अगले साल नहीं लेके जाते हैं। अब मैं इसका डिफरेंस फटाफट पढ़ूंगी ताकि टाइम आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि अब आपको सब समझ आ गया है। तो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड ओवर द पीरियड हो गया, यस मैम। ठीक है, जबकि रेवेन्यू का सिर्फ 1 ईयर में होता है। अब ये नॉन रेकरिंग है, ये रेकरिंग है, ये हैवी कैश आउटले दिखाता है, क्योंकि कैपिटल खर्च चीज लेने के लिए, कार लेने के लिए हमें ज्यादा पैसा चाहिए, जबकि ये लोअर कैश आउटले दिखाता है, रेंट वगैरह नॉर्मल डे टू डे खर्चे करने के लिए हमें कम पैसे चाहिए होते हैं। इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, इनकम साइड में, और सॉरी इनकम स्टेटमेंट में, डेबिट साइड में, खर्चे वाली साइड में, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। ये जो है बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंटिटी, जब है आपने काम शुरू किया या नहीं किया, आपने एसेट खरीद ली तो उसकी आपने एंट्री कर देनी है, चाहे काम आप बाद में भी शुरू करोगे। लेकिन ये हम तभी करते हैं जब हमारा बिजनेस शुरू हो गया। जैसे मान लो आपने एक घर बनवा रहे हो, नया घर बनवा रहे हो, उसमें अभी रहना शुरू नहीं किया, लेकिन उसके लिए फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, तो वो जो फर्नीचर है आपका, वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि घर में जाने से पहले भी आप फर्नीचर खरीद सकते हो, चाहे उसको डिलीवरी बाद में ले लेना या लाके रख दो ढक के उसको कवर करके। लेकिन जो घर का बिजली का खर्चा है वो तभी से शुरू होगा जब आप वहां जाके रहना शुरू करोगे। तो जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, वो तभी शुरू होते हैं जब हमारा बिजनेस काम करना शुरू कर देता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम पहले भी कर सकते हैं। मतलब हमने बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस शुरू किया हुआ है, नया शोरूम खोलना है, उसके लिए फर्नीचर ले लिया, सामान खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, तो वो बिजनेस शुरू होने से पहले भी हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा
इट टेंड्स टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको करने से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और हमारे ऑपरेटिंग खर्चे कम हो जाते हैं। जैसे मान लो एक शोरूम आपने किराए पे लिया हुआ था, फिर आपने खुद का खरीद लिया, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी एक तो, दूसरा आपका जो किराया जाता था वो कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। ये आपको करंट पीरियड की एक्टिविटीज करने में हेल्प करता है। और ये पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हर साल हम कुछ कुछ करके रेवेन्यू के अगेंस्ट खत्म कर देते हैं और इस एक्सपेंडिचर को हम सेम ईयर में खत्म कर देते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस। अब सर्टेन रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब इसको ध्यान से पढ़ना। कुछ रूल्स हैं कि किसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेना है और किसको आपने नहीं लेना है। Now I would like to invite Raman. Raman, are you there? Yes, ma'am. रमन आप पढ़िए बेटा आप ये रूल्स। Certain rules for identification of capital expenditure. An expenditure can be recognized as capital if it is incurred for the following purposes. An expenditure incurred for the purpose of acquiring long-term assets, useful life is at least more than one accounting period for use in the organization to carry on its operation and not meant for resale will be treated as capital expenditure. For example, if a second-hand motor car dealer buy a piece of furniture with a view to use it in business, it will be a capital expenditure. But if he buys second-hand motor car for resale, then it will be a revenue expenditure because he deals in second-hand motor cars. When an expenditure is incurred to improve the present condition of a machine or putting an old asset into working condition, it is recognized as capital expenditure. The expenditure is capitalized and added to the cost of asset. Likewise, any expenditure incurred to put an asset into working condition is also a capital expenditure. For example, if one acquires a machine for 5 lakhs and pay 20,000 as transportation charges and 40,000 as installation charges, the total cost of the machine coming to 5,60,000. Similarly, if a building is purchased for 40 lakh and 2 lakh is spent on registration and stamp duty, the capital expenditure on the building stands at 42 lakhs. An expenditure incurred for improving the earning capacity of an organization will be considered to be of capital nature. For example, expenditure incurred for shifting the factory for easy supply of raw material will be capital expenditure. Preliminary expenses incurred before the commencement of business is considered capital expenditure. For example, legal charges incurred by a company for drafting the memorandum of association, article of association of a company, or brokerage paid to brokers, or commission paid to underwriters for raising capital, etc. यस तो देखिए रूल्स क्या है। वैसे तो हमने ऊपर पढ़ लिया, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पर फिर भी हम इसने विद एग्जांपल बताए हैं आपको, तो इनको अच्छी तरह से कर लेना क्योंकि आपका 20% मार्क्स का इसी मॉड्यूल में से आना है। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कब रिकॉग्नाइज करोगे। पहला, अगर वो एक्सपेंडिचर जो है आपका फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट के लिए लिया गया है, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ कम से कम 1 साल से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, और वो आप उसको कैरी करोगे, रखोगे अपने पास ऑपरेशंस के लिए, यानी कि उसको आपने सेल के लिए नहीं लिया। ऐसे तो नहीं है ना कि इस साल कार लेके अगले साल बेच दी क्योंकि हमारा कार का बिजनेस है, तो वो हमारी एसेट नहीं है क्योंकि हमने इसको लिया ही रीसेल के लिए था। तो कोई चीज जब एक तो आप लॉन्ग पीरियड के लिए ले रहे हो, दूसरा आपको डे टू डे ऑपरेशन में वो हेल्प करती है, तीसरा आप उसको रीसेल के लिए नहीं ले रहे, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। जैसे आपने एक सेकेंड हैंड मोटर कार डीलर हो और उसमें आप अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर ले रहे हो और एक ले रहे हो सेकेंड हैंड कार बेचने के लिए, कहने को तो दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं हमारे, लेकिन नहीं, यहाँ पर फर्नीचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो सेकेंड हैंड कार लिया हमने वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है क्योंकि वो हमने रीसेल के लिए लिया। दूसरा वो कहता है कि जब आपकी मूवमेंट ऑफ प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मशीन पुटिंग एन ओल्ड एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, अगर आप पुरानी मशीन को उसको
नहीं बनाने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए कर रहे हो पैसा खर्च, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। द एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। जैसे आपने अपनी एक मशीन खरीदी 5 लाख की, उसके ऊपर 20,000 खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि उसको लाना था। कंडीशन 5 लाख की मशीन खरीद के आप कुछ नहीं कर सकते ना, जब तक कि आपके ऑफिस में नहीं, यानी आपकी फैक्ट्री में नहीं आएगी वो, ठीक है। और उसको इंस्टॉल नहीं कराओगे, मान लो फैक्ट्री में भी आ गई तो बंद करके रख दी, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको इंस्टॉल भी कराना है। तो इंस्टॉलेशन के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, तो 5,60,000 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही आपने एक बिल्डिंग खरीद ली 40 लाख की, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाओगे तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, स्टैंप ड्यूटी नहीं दोगे, उस पर सारा 2 लाख खर्च हुआ, तो आपको उसकी कॉस्ट 42 लाख पड़ेगी। तो आप अपनी बुक्स में 42 लाख लिखोगे एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अगर आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मान लो एक फैक्ट्री आप किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हो, ताकि सप्लाई जो है रॉ मटेरियल की आपको इजीली हो जाए, वो थोड़ी दूर पड़ती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बच जाए, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो अभी हमने कहा था कि पहले से हमने कर दिए ऑपरेशन शुरू होने से पहले, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे होते हैं। मुझे अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है, उसके लिए लीगल चार्जेस देने हैं, मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवानी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवानी है, ब्रोकर को कमीशन देनी है, अपने शेयर इशू करवाने हैं अंडर राइटर को कह के, ये सब खर्चे मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि मैंने बिजनेस शुरू करने से पहले ये खर्चे कर दिए हैं। तो ये खर्चे सारे मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं। क्लियर? क्लियर मैम। एनी डाउट यहाँ तक किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम, Okay. क्लियर है। क्लियर है। तो कुणाल जी, अब किसकी टर्न है? किसने शुरू किया था आज? निशु? यस मैम। निशु आप पढ़िए बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is the expenditure for which payment has been made or a liability has been incurred, but which is carried forward on the presumption that will be of benefit over a subsequent periods or periods. Example: heavy advertisement expenditure incurred prior to launching a new project, development expense of a product, etc. Accounting treatment. A part of such expenditure, the expense portion, is recorded in the debit side of the income statement, while the unwritten portion appears as an asset in the balance sheet. No, ma'am, NB Note. note. Okay. After the issuance of Accounting Standard 26, the expenditure which were recognized as deferred revenue expenditure has to be treated as simple revenue expense. The accounting standard has specifically mentioned that any expenditure incurred for research, training, advertising, and promotional activities should be recognized as an expense of the accounting period in which it has been incurred. ठीक है। देखो बच्चे, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड क्या होता है? किसी चीज को डेफर कर देना, उसकी रेवेन्यू को डेफर कर देना। इसको इसलिए ये नाम दिया गया था कि जैसे मैंने एक साइन बोर्ड बनवा लिया अपना 1 लाख खर्च करके, वो मेरा 5 साल तक चल सकता है, तो इसका मतलब उसका फायदा मैं 5 साल तक उठा लूंगी, उससे रेवेन्यू मुझे 5 साल तक आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. मैम। आपने वो एड कभी देखी हो, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो आती थी बचपन में, बड़े सालों तक वही एड चलती रही, 8-10 सालों तक, तो वो उसकी सीडी ही चला देते थे, बस वही चलती रहती थी। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसको हमने आज खर्च कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट जो है हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, और बहुत सारे सालों तक उसका बेनिफिट उठाते रहते हैं। कहने को वो हमारा रेवेन्यू खर्चा है, लेकिन वो डेफर्ड है। जैसे एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्च कर देना, या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसके ऊपर खर्चा कर देना, जैसे उसकी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, कोई चीज को डेवलप करने हैं उस पर खर्च कर देना, ये तीनों याद रखना। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और प्रायर टू लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्ट, ये तीनों चीजें आपके डेफर्ड रेवेन्यू में आते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू में क्या होता है कि जिस साल आपने ये खर्चा कर दिया, उस साल
उस साल आप उसको एक पोर्शन, मान लो मैंने 1 लाख खर्च कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे और मुझे पता है कि ये मेरे को 5 साल तक बेनिफिट देने वाली है, तो 1 लाख को मैं 5 से डिवाइड करूंगी, 20,000 पर ईयर मुझे वो बेनिफिट देने वाली है। तो मैं हर साल 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगी। पहले साल मैंने 20,000 लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी जो 80,000 बचे उसको मैंने बैलेंस शीट में अपनी एसेट बना लिया। अगले साल फिर मैंने 20,000 खत्म कर दिए उठा के, अब 60,000 की रह गई। अगले साल फिर 20,000, यानी कि लाइक डेप्रिसिएशन हम उसको राइट ऑफ करते रहेंगे। लेकिन अब ये चीज खत्म हो गई है, ये पहले होती थी क्योंकि आपके सिलेबस में लिखी है तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये याद रखना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आ गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने याद भी करने हैं बाद में, इसलिए साथ साथ अपने दिमाग में इसको बिठाते रहो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि जो खर्चा आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानना है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। जिस साल खर्चा कर दिया उसी साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो सारे का सारा। जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है। क्योंकि उसको लोग तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से यूज कर रहे थे। मान लो मुझे लगता है कि कम खर्चा दिखाना है, कोई उसी 1 लाख को 10 साल में बांट देगा, कोई उसी 1 साल को 5 लाख में बांट देगा, कोई 20 साल में बांट देगा। ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड था नहीं, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये चीज खत्म कर दी। वो ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कि जिस साल खर्चा किया है, चाहे आपने रिसर्च पे किया है, चाहे ट्रेनिंग पे, चाहे एडवर्टाइजमेंट पे, चाहे प्रमोशन पे, उसी साल आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो और खत्म करो। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब हमारे पास जिस तरह से कैपिटल एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने करे हैं, उसी तरह कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट भी हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा है तो मैं ही इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए रिसीप्ट ऑफ मनी मे बी ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। जब आपके पास पैसा आया तो वो भी कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है आपके पास। A clear distinction to be made between capital receipt and revenue receipt to ensure proper determination of operating result। आपको जरूरी है ये देखना जानना कि वो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो कैपिटल रिसिप्ट विच आर obtained by entity from operations other than regular operations। जो रेगुलर काम से आपके पास पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो रेगुलर के बिना कहीं और आ रहा है वो कैपिटल है। जैसे आपने किसी साल अपनी पुरानी कार बेच दी, तो हर साल तो नहीं बेचते ना कार, वो आपका रूटीन बिजनेस तो नहीं है ना। अगर आप बिजनेस ही कारों का करते हो तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर आप कारों का बिजनेस नहीं करते पर क्योंकि आपको नई कार लेनी थी तो पुरानी बेच दी, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, उसका हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अभी हमने ऊपर बढ़ा था, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेते हैं। प्रॉफिट अर्न और लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। अब कंपनी ने कुछ शेयर इश्यू किए फंड्स के लिए, 1,000 शेयर इश्यू किए और 50 रुपए का एक शेयर लिया, तो उसको कितने पैसे मिले? 50,000 मिल गए कंपनी को। ठीक है, अब 50,000 जो कंपनी को मिल रहे हैं वो हर रोज थोड़ा मिलते हैं, वो तो कभी कभी शेयर इश्यू करेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। सच रिसिप्ट इज क्रेडिट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ कैपिटल नेचर, तो वो कैपिटल में जाएगी और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल में रिफ्लेक्ट भी करेगी। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जो हमारी रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन से हमें मिलती है और रेवेन्यू नेचर की है, इससे हमारा प्रॉफिट या लॉस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कंपनी ने 1,000 यूनिट सेल की है, जो उसका जो भी यूनिट है, जो प्रोडक्ट वो बना रही है 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो उसकी सेल हो गई 20,000, ये हमारी रेवेन्यू इनकम है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल में या इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं बिल्कुल कैपिटल और रेवेन्यू खर्चों की तरह, तो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो रेगुलर ऑपरेशन में नहीं आती है, अदर देन रेगुलर में आती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से आती है। ये इररेगुलर है और नॉन रेकरिंग है, ये रेकरिंग है, सेम है आपका ये भी।
इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, इसको हम इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इसको हम इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको हम इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। इससे हमारा ऑपरेटिंग रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारा ऑपरेटिंग रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। इससे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है और इससे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। उसमें एसेट क्रिएट होती थी, इसमें लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है। मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिजल्ट्स इन ईदर प्रॉफिट और लॉस। जब हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को मैच करते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस आता है। अगर हमारी रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस है। Extension of discussion on expenditure received nature naturally read with the capital and revenue profit and losses। वो कहते हैं इसको फिर फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे। जैसे हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े, कैपिटल एंड रेवेन्यू हमने रिसीव्ड पढ़ी, ऐसे हम कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी पढ़ेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं इनवाइट करूंगी आप में से रमन का हो गया, गुंजन का हो गया, हिमांशी वर्मा आप पढ़ोगे? Yes, ma'am. पढ़िए, कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स पढ़िए। While asserting the operating result of an entity in relation to an accounting period, proper distinction is to be made between capital profits and revenue profits. Capital profits refer to a profit which arise out of the non-operating activities of an entity. It is non-recurring in nature. Generally, capital profits arise out of the sale of assets other than inventories or in connection with the arising of capital or at the time of purchasing an existing business. Example, profit prior to incorporation, premium received on issue of share, profit made on reissue of the forfeited share, redemption of debenture at a discount, and profit made on sale or revaluation of an non-current tangible assets, etc. Accounting treatment. Capital profits are generally capitalized. That's transferred to the capital reserve account. Revenue profit refer to a profit which arises out of the regular operating activities of an entity. It is recurring in nature. Example, profit arising out of the sale of the mercantile that the business deals in, profit made by the rendering regular services to client, and surplus earned by a non-profit organization, etc. Revenue profit which get determined in the income statement are distributed to the owners of the business or transferred to any reserve account. देखिए वो कहता है कि जिस तरह आपने कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स और एक्सपेंडिचर और इनकम में डिफरेंस किया है, उसी तरह आप इसके प्रॉफिट्स और लॉस में भी डिफरेंस करोगे। ठीक है। प्रॉपर डिस्टिंक्शन क्या है? कैपिटल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? दैट अराइजिंग आउट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग। बार बार वही आ रहा है, नॉन रेकरिंग नॉन ऑपरेटिंग से जो अराइज होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। ठीक है। ये रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे आपने कोई एसेट बेच दी किसी साल, जो आपकी इन्वेंट्री नहीं है, आपका स्टॉक नहीं है, पर आपने कोई फैक्ट्री बेच दी, कोई मशीन बेच दी, कोई कार बेच दी, उससे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। और उसको आप कैसे कर, एग्जाम्पल जिसने बता दिया, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आपका बिजनेस अभी इनकॉर्पोरेट होने से पहले आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। और प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर इशू किए, रोज रोज तो शेयर इशू नहीं करते ना हम, तो उससे जो प्रीमियम मिलेगा वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मेड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। ये सब याद कर लेना जो एग्जाम्पल है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू बहुत सारे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, प्रॉफिट मेड ऑन सेल और रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? हम इसको कैपिटलाइज्ड करते हैं कैपिटल प्रॉफिट को,
ये और इसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, या याद रखना कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। किस में ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल प्रॉफिट को? Capital Reserve account. हाँ, इसको हाईलाइट करके रखना। रेवेन्यू प्रॉफिट जो है, जो हमारे रूटीन के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ मशीन मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होता है? जो हमारी रूटीन की हमारी प्रोडक्ट्स हैं। अब हम कपड़े की शॉप में जाते हैं, कपड़ा खरीद के आते हैं, दैट इज देयर रेवेन्यू। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ मर्चेंडाइज। प्रॉफिट मेड बाय रेंडरिंग रेगुलर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। इससे जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है कि हम इसको इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाते हैं, और हम इसके बिजनेस के ओनर्स को इसको ट्रांसफर, कुछ पैसा हम ओनर को दे देते हैं जैसे प्रॉफिट के रूप में, या शेयर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, और कुछ हम फ्यूचर के लिए सेविंग करके रख लेते हैं जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट भी बोलते हैं। इसी तरह आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉस भी होता है, सेम इसी तरह से होता है। कैपिटल लॉस का मतलब होता है जो हमारे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं होता है, नॉन रेकरिंग होता है। एग्जांपल वही है, आपने कोई पुरानी एसेट बेच दी, अगर उससे प्रॉफिट हो गया तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, और लॉस हो गया तो कैपिटल लॉस है। कोई लॉस होगी एसेट, कोई चोरी होगी, कोई कई बार फैक्ट्रीज में फायरिंग हो जाती है, कुछ भी होता है, फ्लड आ गया, फायर लग गई, तो इसकी वजह से जो भी नुकसान होते हैं जो नॉन रेकरिंग होते हैं, डे टू डे हमारा काम नहीं है ये सब, लेकिन हो गया तो वो कैपिटल लॉस है। इसी तरह आपने शेयर इशू किए, डिबेंचर्स जो है, जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, लेकिन जब हम डिस्काउंट पे रिडीम इशू करते हैं तो वो हमारा लॉस होता है। सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी थी, कोई आपकी बुक्स में लाइबिलिटी थी, उससे ज्यादा आपको पैसे देने पड़ गए, कोई केस हो गया, कुछ हो गया, सब कैपिटल लॉस है। इसको हम इनकम एंड स्टेटमेंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, या फिर अगर पूरी तरह से नहीं दिखाना है और अगली बारी में उसको खत्म करना है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से होता है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट था ना, वो जब हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है ना, तो वो फिक्टिशियस एसेट होते हैं। फिक्टिशियस एसेट का मतलब ये एसेट नहीं है, क्योंकि लॉस है, उसका डेबिट बैलेंस है, तो फिर हमें दिखाना पड़ा एसेट में। रेवेन्यू लॉस होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से होता है, इसमें डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर या बैड डेट, ये सब रेवेन्यू लॉस में आता है। ठीक है, इसको तो हम इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में ही लिखते हैं, इसको और कहीं नहीं लिखते हम। अब एग्जाम्पल है, तो मैं 1 बाय 1 पूछूंगी आपसे, एक एक करके बताएंगे। अभी पहला हिमानी वर्मा बताएगी। हिमानी आप बताइए, कौन, एक मिनट, मैंने नाम शायद गलत बोल दिया, सॉरी। हिमांशी आप बताइए, एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक जो है ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? Extension of railway track. Railway. मैम ये एक्सपेंस है। ओह सॉरी, एक्सपेंस कैपिटल है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। क्यों बेटा, क्या रोज रोज रेलवे ट्रैक बनते हैं? नो मैम, कैपिटल है। तो फिर सोच के बोलो बेटा। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर, ये बताएगी निशु, आप बताओ। मैम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, ये रेवेन्यू है क्योंकि वेजेस तो हम रोज ही पे करते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट मशीन, ये बताएंगे रमन, आप बताओ। मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, कैपिटल है क्योंकि नई मशीन खरीदी है। मटेरियल्स ऑफ फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैन ऑफिस इन द फैक्ट्री, ये मेरे को बताएंगे कुणाल, आप बताइए। कुणाल चौधरी हाँ जी मैम। बताइए, मटेरियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैन ऑफिस इन फैक्ट्री, ये किस में आएगा, कैपिटल में या रेवेन्यू में? मैं कैपिटल लगेगा था। हाँ कैपिटल। हाँ, कैपिटल में आएगा क्योंकि चाहे मटेरियल है लेकिन हम उससे अपना कुछ बना रहे हैं। रेंट पेड फॉर फैक्ट्री को कहाँ आएगा, गुंजन बताइए फटाफट से। मैम रेवेन्यू। गुड। सलोनी अब आप बताएंगे। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर कंप्यूटर
time to operator a new stores control system? Ma'am, revenue. नहीं, payment for computer time to operate a new store control system. ये चेक करो बेटा, ये डाउटफुल है. नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है. लास्ट क्या है? वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग ऑफ फॉरमैन ऑफिस. ये भी आपका कैपिटल में आएगा. तो आप इस तरह से ये एग्जाम्पल सारे करेंगे आज, ठीक है. सेकंड एग्जाम्पल है, आप लोग खुद करेंगे इसको, ठीक है. क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम. कर लेंगे आप सब सेकंड एग्जाम्पल? Yes, हाँ जी, ma'am. बोलिए. कुछ पूछना चाहता है कोई आप में से? एग्जाम्पल फर्स्ट का 6 समझ नहीं आया. सिक्स्थ के फिफ्थ? मैम 6. 6 ये पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेटर. यस मैम. ये रेवेन्यू ही बोला था आपने, ठीक है. वो तो देखो, कोई नया स्टोर आपने बनाया, नए स्टोर में जैसे मान लो मैंने अपने घर में कैमरे लगवाने हैं, ठीक है. तो हम बुलाते हैं ना कैमरा लगाने वाले को. यस मैम. अब आपने कंप्यूटर पे कोई नया स्टोर खोला, उसकी डिटेल्स डालोगे ना अपने कंप्यूटर में, क्योंकि इंटरनेट पे सारा कनेक्टेड होता है ना आजकल. यस मैम. तो ये तो डे टू डे खर्चा है हमारा. ओके. आपने एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कहा भाई ये मेरा नया शोरूम खुला है, इसमें ये डिटेल डाल दे. वो तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है ना, बड़ा खर्चा नहीं है ना ये, ठीक है. यस मैम. तो अगर तो आपने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, फिर तो यहाँ तक करवा देती हूँ मैं, अकाउंटिंग साइकिल तक. सेकंड एग्जांपल आप खुद कर लेना, ठीक है. आपका टाइम बच जाएगा, इससे कर लोगे. किसी को कोई डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है. यस मैम. आगे है अकाउंटिंग साइकिल, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. यस, ये मैं आप में से इनवाइट करूंगी. बेअंत कौर जी, आप पढ़िए. The accounting cycle is a sequence of activities performed by an accountant to document and report an organization's financial transactions during an accounting period. This cycle follows financial transactions from when they occur to how they affect financial documents. The entire process, starting with identification of transaction, their recording and processing all transaction of an organization, to its representation on the financial statements, and also to closing the accounts, if applicable, is transferred to as accounting cycle. To keep track of the full accounting cycle from start to finish is one of the main duties of a bookkeeper. स्टेजेस भी पढ़िए. Of accounting cycle. The accounting cycle consists of the following sequential steps. Identifying transactions. The first step in the accounting cycle is to analyze events to determine if they are transactions. Transactions are the starting point from which the rest of the accounting cycle will follow. Number two, सुमित आप पढ़िए आगे. 2 से 4 तक सुमित आप पढ़िए. Recording transaction in the books of original entry. The second step in the accounting cycle is to record and identify transaction in the relevant books of original entry as journal entry. Third, posting to the ledger. The next step is to record a summary of activity in relevant account in the ledger, referred to as posting. Fourth, drafting of unadjusted trial balance. At the end of an accounting period, data from ledger account may be taken to draft a trial balance. It is prepared for identify any error that may have occurred during the initial stage of the accounting cycle. However, this step is not mandatory. आगे कौन पढ़ेगा 5th से लेकर? पहले फिर मैं इकट्ठे एक्सप्लेन करूंगी. जिसने 1 टाइम पढ़ा हो आज, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है? कुछ लेफ्ट भी कर गए हैं आप में से. हाँ जी, निशु आप पढ़िए. निशु का हो गया 2 बारी. यस मैम. रमन आप पढ़ेंगे? वॉलेंट्री कोई पढ़ेगा?
2-3 पॉइंट रह गए हैं, पढ़िए बच्चे। Passing of adjustment entries. Identifications of necessary adjustment and passing of adjusting entry make up the fifth step in the cycle. Drafting of adjusted trial balance. Once all adjusting entries are completed, then all adjusted trial balance can be prepared. These happen to be the last step before the preparation of financial statements. Closing of books. In this stage of accounting cycle, the ledger accounts are closed and balanced, also referred to as zeroed out, at the end of every accounting period. Drafting the financial statement. In the last stage of accounting cycle, the income statement is prepared with the closing balances of the nominal accounts, while the balances of real and personal accounts get reflected in the balance sheet. Financial statements are prepared in the following order: income statement, statement of retained earning, balance sheet, and statement of cash flows. गुड। देखिए हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, पहले ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने इसीलिए मैंने पहले स्टेजेस पढ़वा दिए। स्टेजेस से आप ध्यान से समझिए, सीक्वेंस है कि हमने किस सीक्वेंस में काम करना है। अपनी अकाउंटेंट, आप एज ए अकाउंटेंट किसी से काम करवा रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगी आप करोगे, आप करो या करवाओ, आपको किस सीक्वेंस में काम करना है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट लोगे और लास्ट स्टेप होता है रिपोर्ट करना। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसलिए दिखाते हैं कि हमारी ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए सारी चीज। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमें अपनी रिपोर्ट्स देखनी होती हैं। दिस साइकिल फॉलो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये साइकिल जो है वो चलता कैसे है, पहियों से चलता है ना, तो हमारे अकाउंटिंग का साइकिल के पहिए कौन से हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फ्रॉम व्हेन दे अकर टू हाउ दे अफेक्ट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, और एंड पॉइंट क्या है कि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखेगा। समझ आ गई आपको ये बात? मैम अब क्या है, द एंटायर प्रोसेस स्टार्टिंग विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? हमने पहले भी पढ़ा था कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, कि क्या ट्रांजैक्शन है, उसमें कितनी मनी इन्वॉल्व है, क्या वो कैपिटल है, क्या वो रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंडिचर है या इनकम है। फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंगली। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं, और फिर प्रोसेस का मतलब लेजर में डालते हैं, बैलेंस निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और लास्ट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब हमने ईयर एंड पे अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। इसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल हमारा 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड है। टू कीप ट्रैक ऑफ द फुल अकाउंटिंग साइकिल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इज वन ऑफ द मेन ड्यूटी ऑफ ए बुक कीपर। अब देखो ये ड्यूटी किसकी है? मैनेजमेंट की नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी नहीं है ये ड्यूटी किसकी है? बुक कीपर की। किसकी ड्यूटी है बताइए? अकाउंटिंग साइकिल की ड्यूटी किसकी है? बुककीपर। बेटा ये एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ आपसे, ये चीजें जवाब दिया करो। स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो इसमें 8 स्टेजेस बनाई हैं हमने। पहले तो याद रखनी है कि हमने 8 पैड़ियां चढ़नी हैं छत पे पहुंचने के लिए, स्टार्टिंग से एंड तक। तो पहली पैड़ी क्या है हमारी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला स्टेप, हमने अपनी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। दूसरा उसको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्डिंग किस में होती है? जर्नल में। जर्नल को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। क्यों कहते हैं? क्योंकि कई बार हम जर्नल की जगह बड़ी कंपनियां सेल बुक, परचेज बुक, डे बुक्स बनाती हैं, इसलिए हम इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो ये जर्नल एंट्री होती है। दूसरा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। अब देखो आप उठा के चल रहे हो, पहले स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया, डॉक्यूमेंट लिए एज ए बुक कीपर, फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसकी पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग किस में करनी है? रेलेवेंट लेजर में। ठीक है, पोस्ट भी हो गया। उसके लेजर में पोस्ट होने का मतलब होता है एंड में हमने लेजर के बैलेंस निकालने हैं,
और फिर हमने बनानी है एक ट्रायल बैलेंस, जिसको हम ड्राफ्ट करते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब हमने उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की है अभी, जैसे हमारे लेजर्स ने दिखाया हमने उठा के उसमें डाल दिया। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम एक बार ही बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, रोज रोज नहीं बनाते। डेटा फ्रॉम लेजर अकाउंट उठाते हैं और ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। तीसरी सीढ़ी चढ़ गए हम, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं हो रही। एरर कैसे देखते हैं कि हमारी ट्रायल बैलेंस मिल रही है या नहीं मिल रही। कई बार मिलने के बाद भी एरर हो सकती है, उसको भी हम ढूंढते हैं। However, this step is not mandatory. एरर ढूंढना is not mandatory, but करते हैं हम, ढूंढते हैं। पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रायल बन गई हमारी। फिर 5वीं सीढ़ी पे चढ़ के हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है, जिसमें हमारी क्लोजिंग स्टॉक आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, हमारी अनअर्न्ड इनकम आती है, हमारा डेप्रिसिएशन आता है, कितनी सारी चीजें आती है ना एडजस्टमेंट एंट्रीज में, कि नहीं आती? हाँ जी, याद है कि नहीं? Yes, ma'am. उसके बाद फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। हालांकि आपने ये नहीं किया होगा +1 +2 में, लेकिन हम 6th स्टेप पे एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले और एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद। फिर हम अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब होता है उसको जीरो आउट करते हैं, खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं, अपनी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से एक चीज उठाई, देखना है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है या बैलेंस शीट में, डाल दी। फिर दूसरी उठाई, डाल दी। मतलब राशन आ गया घर में थैले में, अब उस थैले को खत्म करना है। खत्म कैसे करते हो थैले को? जब स्विगी से सामान मंगाती है मम्मा राशन का, क्या करती है उस राशन को? थैले से एक सामान उठाया, Yes, ये इस डिब्बे में डालना है, दूसरा उठाया, ये इसमें डालना है, थैला खाली हो जाता है। yes, ma'am. तो आपने भी अपने ट्रायल बैलेंस का बैग खाली करना है, अपने उसको या तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है या बैलेंस शीट में, और उसको फिनिश कर देना है। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो गई बनके, खाना बन गया, अब आप खिला सकते हो अपने स्टेक होल्डर्स को। तो इनकम स्टेटमेंट बन गई आपकी, बैलेंस शीट बन गई, वो मिलनी चाहिए, ठीक है। वाइल बैलेंसेस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स को हम, जैसे एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, ये सब रियल एंड पर्सनल हैं, इनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और नॉमिनल तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या, आपसे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि किस ऑर्डर में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। तो पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, एंड देन बैलेंस शीट, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बेटा ये छोटी सी चीज है, देखो ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। मैं आपको इंडिकेशन दे रही हूँ कि क्या क्या पेपर पूछे जा सकते हैं। अब आप नहीं हाईलाइट करके रखोगे तो मेरा कोई कसूर इसमें नहीं है। तो ये है आपकी अकाउंटिंग साइकिल, जिसकी 8 सीढ़ियां हमने चढ़ी। पहली सीढ़ी थी, हमने आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन को, फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया दूसरी सीढ़ी पे, फिर पोस्ट किया, देन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टेड एंट्रीज की, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट किया, देन बुक्स को क्लोज किया अपनी जीरो